Om Shanti, Sister Jayanti. Om Shanti. And welcome to everyone once again. We have missed you, Jayanti Ben. And I want to say that Baba always gave Sister Jayanti the title of Flying Yogi, Flying Angel. And Sister Jayanti was a major participant and contributor in the COP26 conference. And it's not a small event, it's a very international event. You know that many prime ministers were there, presidents were there. And so, Sister Jayanti, I feel like you've come back from this kind of victory, from not a battle, but I feel like you've done great service and come back from that. So Sister Jayanti will revise the Murli a little bit, share news about COP, and then we can ask her a few questions. Welcome back, Sister Jayanti. Thank you. It's lovely to be back with all of you again. Whenever there's a festival, it's Christmas, it's Diwali, any major event like that, we always say lots of love, lots of blessings, lots of good wishes
all our pure feelings are with you. It's a very beautiful way to express our thoughts of love to those who we do love and all our friends and connections. But this time, Baba actually took up what it means to have pure feelings and good wishes for everyone. And so just a recap on the Murli first, and then a few thoughts of reflection further in terms of what Baba said. And so Baba first of all pointed out that God is the benefactor for all, but all of you children also are the master bestowers, the benefactors, because you have pure feelings and good wishes for everyone in the world. And in Bhakti also, you would have good wishes and pure feelings, but of course you didn't know how to take power from God, you weren't connected with God, and so you weren't actually able to do that for any extent of time. It was only for a very limited period of time that people were able to experience the benefit of that. And it's only now when you actually understand what it means to have pure feelings and nothing but good wishes, that you can actually give souls benefit for the whole of the cycle. Or yes, half the cycle, but that benefit is carried even further along. And so the power of your good wishes are such that really you change not only the humans of the world and give all of them the unlimited experience of taking whatever they need from God, but also you actually transform nature and the elements itself. And so just imagine how powerful your good wishes are. And you don't always realize how भगवान को powerful they are. भगवान की सेवा करने के लिए I've also commented that these two things absolutely go Are you in the together. house? You can have pure feelings for all, Can you come to the but you boardroom if must you're in the also house? have the foundation for that, and that is He's the not answering pure his phone. desire to be able to If you can serve ask him. all with this. Because Thank you. the two things are absolutely connected. If you're just simply repeating भगवान से हम what कैसे was वो told वर्षा you, ले सकते हैं? if you're sharing things just in terms of duty हमारे and अंदर शुभ भावना है, responsibility, and I suppose I have to, then शुभ that कामना, doesn't touch souls, शुभ it doesn't भावना transform souls. But सबके when you लिए. have really that pure desire that they should claim their inheritance, अगर हमारी from शुभ the भावना cycle, सबके लिए है तो वो take सचमुच भगवान के everything नजदीक आ that they're सकते हैं. right to take from Baba. And you have those pure साइंस के feelings आधार से for तो all. हम And the देखते हैं कि combination of that हम pure सागर को desire पार and good करके wishes सभी for them, आत्माओं को and पहुंच सकते also हैं. the pure कहाँ feelings से for भी all. The आवाज पहुंच combination of सकता that है, is such that लेकिन truly उनसे you're भी able to come close to the महत्वपूर्ण Father. है And साइलेंस की your good शक्ति. wishes are dedicated to संकल्प की serve शक्ति and for सबसे sending तेज love. है. कोई भी चीज And विश्व में हो how with उनसे भी तेज science है. now, science is तो able कहाँ to पर भी read the आत्मा हो उनको हम मदद कर perceptions सकते and हैं. vision and sound तो उन्हों from को भी anywhere. फिर ऐसे मालूम पड़ता Surely है, the power of silence महसूस is होता है कि mighty. किसी So के I think द्वारा that मदद just the मिल रही है. speed of thought न सिर्फ is ऊपर such परमात्मा के that द्वारा we मदद have मिलती now है, so लेकिन many यहाँ भी guides. कोई कोई And आत्माओं so से ऐसे your मदद pure मिलती है. feelings can reach souls and help them. And they'll तो feel अपनी शुभ that भावना, there शुभ is कामना की some help that's महत्व reaching them करना, from उसका somewhere. कदर करना कि And कैसे they वो won't सबको know पहुंच that सकती it's है. you, and that's fine. But they'll लेकिन know बाबा that कहते it's हैं, come from up above. ये हमारे And मन और drawn बुद्धि the में अगर attention to that please जगह है, and शांति की जगह है, And so तो हम just शुभ to भावना, make शुभ it कामना रख clear सकते हैं. the power अगर of बुद्धि your good बहुत wishes ही and हर pure बातों में feelings, चलती रहती है, मन as में संकल्प चलते रहते Baba हैं, also explained, that this is possible only तो when you फिर make space in your mind and your intellect. And what we are doing at the present हमारे time मन is बुद्धि that में हम we're ऐसी occupying शांति की ourselves. जगह बनाए रखें ताकि Too हम much ऐसी else are going on. We're आत्म caught अभिमानी up स्थिति in all बना sorts of करके, little situations and little incidents. जैसे बाबा ने कहा, So the एकांत mind प्रिय becomes बन करके shattered. रहना. It's engaged and nothing more can अभी happen. ठीक है, उसने बोला And ठीक so है, make उनको space. पूछा था And इसलिए. here I've क्या है, मुझे invited इसमें you नहीं to सुनाई let देता है, यहाँ yourself से ही go सुनाई to a देता है, तो higher थोड़ा रुकना state. पड़ता है. In that state of soul नहीं consciousness and सुनाई पर इसमें नहीं remembrance of सुनाई God, देता है, Baba said, यहाँ है इसका. Ekant Priya,
the one who loves solitude and ekagrata, यहाँ शायद ये concentration. करना है, देखो. And so these two things, and it doesn't mean leaving my duties and running away, going somewhere. I can do that only for a little time. जब मैं anyway. But where I am, traffic control, I make it 4 minutes and 5 to be able to turn inwards. ट्रैफिक कंट्रोल जब मैं करती हूँ 3 मिनट से मैं 4 मिनट करूँ, 5 मिनट करूँ. And really learn to concentrate. So when I love inner यहाँ से चला solitude, गया. here's a simple method. हम्म. Can I extend that 3-minute period of traffic control and make it 4 minutes and 5 minutes, maybe even 6 minutes, so that I'm again able to recharge myself with that inner power, but also I'm able to concentrate, I'm able to focus. Go into the depths of the ocean. Develop the power of silence within myself, which is the ocean of knowledge. Pure feelings and good wishes can reach others. And then Baba said how on the surface of the ocean, ठीक है, ऐसे करने पे वो कहते सुनाई the दे. waves, the sound of the waves. यहाँ नहीं आ. peace, ओके, even थैंक यू. in the waves. But if you go into the depths of the ocean, there's stillness there. And so हमारी शांति की शक्ति है तो हम ocean of knowledge, and कोई भी स्थिति हम महसूस करना चाहे तो वो शांति की शक्ति को बढ़ा करके महसूस कर सकते हैं. तो ये दोनों ही हमको बढ़ाना जरूरी है. शुभ भावना, शुभकामना और संकल्प की शक्ति. और अब बाकी बाबा ने जो मुरली में बताया था, बाबा ने जो टीचर से बात की थी कि आप हर एक अपने आप ये बातें अनुभव कर रहे हो, उसका प्रयोग कर रहे हो. अगर प्रयोग करके अनुभव कर रही हो तो फिर आप मदद कर सकते हो. बाबा ने बताया कि योग्य टीचर वो है जिसका संकल्प, वचन और कर्म तीनों समान साथ साथ है. मन से सेवा हो रही है, वाचा से सेवा हो रही है और कर्मणा से भी सेवा हो रही है. जब तीनों ही साथ हो रही है तो भले सारा समय बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी साथ साथ सेवा होती रहती है, उसमें सब में सफलता मिलती रहती है. फिर तो कुमारियों के लिए बाबा ने बहुत ही पावरफुल दृष्टि थी बाबा की कुमारियों के प्रति. फिर बाबा ने पूछा था आप कैसे योग्य बन सकते हो. सिर्फ एक का बन करके रहो. योग्य बनने के लिए एक का बन करके रहो. पूरा ही समर्पण, एक के साथ पूरा संबंध. फिर बाबा ने कुमारियों को बोला कि सारे विश्व की सेवा करनी है. छोटे से परिवार के सेवा करने के बजाय सारे विश्व की सेवा करना. फिर कुमारों को बाबा ने याद किया, कुमारों को हमेशा साथी चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा कि भगवान की कंपनी है, भगवान का साथ है, परिवार का भी साथ है, तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है. बाबा ने ये भी एक्नॉलेज किया कि कुमारों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है. कुमारी तो घर में रहते, सेंटर में रहते, बहुत ही सुरक्षित है, लेकिन कुमार को बाहर जाना होता है तो बाबा ने उनको बहुत शक्ति दी. और बाबा ने जो पांडव भवन की कहानी बताई कि 60s ने वाराणसी बनारस में पांडव भवन बनाया था, भाइयों का एक संगठन, लेकिन संस्कारों के कारण वो फिर चला नहीं था. फिर दादी लंदन में आई तो 1974 में जब आत्माएं आने लगी तो 75 में बहुत ही अच्छा ग्रुप था यहाँ पर. उसमें ज्यादा पांडव थे, बहनें बाद में आने लगी, लेकिन पहले पांडवों का ग्रुप संगठन मजबूत था. तो दादी ने उन्हों को कहा ऐसी कोई जगह ढूंढो जो आप इतना नजदीक हो, जो अगर कुछ होए
आपको इशारा मिले कि आप आओ तो आप तुरंत ही आ सको। जो भी कुछ हो रहा हो, कोई भी परिस्थिति हो तो आप मदद कर सकते हो। तो ऐसे ही जैसे सड़ पंथ के जगह पर हो, तो एक टेनिसन रोड के सामने ही एक मकान बना था जहाँ पर भाई लोग रहते। फिर वहां से शांति भवन बना जहाँ से भाई लोग रहने लगे, और अभी भी वहां पर बहुत भाई रहते हैं। और ऐसे सारी विश्व में कई भाइयों ने वहां से पालना ली है। ऐसे पांडव सब इकट्ठा रह सके। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स की बात की कि कैसे वो पत्र लिखते हैं। पत्र लिखना तो अच्छी बात है, लेकिन फिर बाबा ने कहा कि छोटा पत्र लिखो, 2 शब्दों का ही पत्र लिखो। ओके, सिर्फ 2 अल्फाबेट का लेटर्स ओ और के। ओ बाबा के लिए, के राजधानी के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ कहने मात्र नहीं कहो, लेकिन जब ठीक हो तब बाबा को लिखो कि मैं ओके हूँ, कि सब कुछ ठीक है। बाबा को लंबी कहानियां सुनना नहीं है, रामायण सुनना पसंद नहीं है। भागवत में भगवान के प्रेम की कहानियां हैं, रामायण में तो सारी कनरस की बातें हैं, उसमें कमजोरियों की बातें हैं, युद्ध की बातें हैं, वायदा तोड़ने की बातें हैं। तो इन सब से अपने को पार रख करके अपने को फ्री रखो। तो बाबा ने सभी को ऐसे प्यार दिया। मन को कैसे बिल्कुल, मन और बुद्धि को कैसे सब बातों से फ्री रखे। मुझे अपने लिए शुभ भावना है, या मैं अपने बारे में ही कंप्लेन करती रहती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या मेरे मन में इस प्रकार की बातें चल रही है? अगर मन में ऐसी बातें चल रही है अपने प्रति, तो बाहर दूसरों के साथ संबंध में भी ऐसी बातें होती रहेंगी। तो अपने मन में अपनी वैल्यू को बढ़ाए, खुद को रिस्पेक्ट दे करके, ताकि मैं दूसरों को भी वैल्यू कर सकूं, प्रकृति का भी वैल्यू कर सकूं। तो बाबा की तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन बाबा ने सिखाया, खुद के लिए शुभ भावना रखना। जो दुनिया से उस पार रहते हैं, जिसको आप जानते नहीं, उनके लिए आप शुभ भावना भेजो, ये तो बहुत सहज है क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। लेकिन जो हमारे बाजू में रहते हैं, हमारा नेबर है, उसके इंटरेस्ट है, जो रुचि है वो अलग है। मेरी रुचि हर बात में अलग है, तो हर बात में फिर उसको क्यों ऐसे मिलना चाहिए, उसको क्यों ऐसे करना चाहिए, मतलब इसमें हमारी फिर टक्कर हो जाती है। तो ऐसे ही न सिर्फ व्यक्तिगत बात, लेकिन देश देश की बात भी, उस देश को क्यों ऐसा, उस देश को क्यों ऐसा, इसमें भी फिर टक्कर हो जाती है। तो शुभ भावना नहीं रख सकते हैं हम देश के लिए भी। मेरे परिवार के साथ कई बारी परिवार में ऐसी दुर्घटना हो जाती है जो सालों तक चलती रहती है, 10 साल 20 साल ऐसे चलती रहती है। लेकिन वो सब बातों मिटा करके, अपने मन से मिटा करके, मेरे जो एटीट्यूड है, मेरी वृत्ति है, जजमेंटल एटीट्यूड है, या फिर क्रिटिसाइज करने की एटीट्यूड है, तो इन सब को छोड़ करके जो भी कुछ हुआ है उसमें सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देना। अगर मेरे मन में रखा हुआ है तो मैं शुभ भावना, शुभकामना की शक्ति को यूज नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे अपने फीलिंग्स को साफ कर देना है, कोई भी प्रकार की बुरा फीलिंग किसी के प्रति भी न हो।
ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि ये एक व्यक्ति है जिसको मैंने माफ नहीं किया है, लेकिन फिर भी चलता है। जैसे जहर में एक बूंद भी जहर का पानी के एक ग्लास में एक बूंद भी जहर पड़ता है तो वो सारा पानी खराब हो जाता है। तो ऐसे अगर एक व्यक्ति के लिए ही मेरे मन में कड़वाहट है, थोड़ा दुख है, तो हम किसी और के लिए भी अच्छी भावना नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस एक के कारण मेरे अंदर वो कड़वाहट जैसे बढ़ती जाती है। तो अपने अंदर और कुछ न हो, तो जो भी नेगेटिव बातें अपने अंदर है उसको निकाल करके बड़ा दिल रख करके जो भी बातें हैं उसको छोड़ देना। कई बारी कितने संकल्प आते, कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या, तो ये सब आते हैं क्योंकि मैं अपने को वैल्यू नहीं करती हूँ। लेकिन मैं अगर अंतर्मुखी होकर अपने को देखूं कि मेरे अंदर भी ऐसी ऊंची बातें हैं, उसको मैं देखूं, उसको देख करके उसको इमर्ज करूं, ये रियलाइज करे कि मैं कौन हूँ। ये सब नेगेटिविटी से फ्री होंगी तो फिर मेरे अंदर शुभ भावना, शुभकामना के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा। जो भी बात होती है उसमें मैं क्या बिंदी लगा सकती हूँ? जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है। हर कदम में मेरे लिए कल्याण है, क्योंकि मैं श्रीमत पर चल रही हूँ। अगर श्रीमत पर नहीं चल रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि हर बात में कल्याण है, लेकिन श्रीमत पर चल रही हूँ तो हर बात में कल्याण है। ड्रामा में भी कल्याण है, बाबा खुद ही कल्याणकारी है। बाबा के साथ ड्रामा भी कल्याणकारी है। ड्रामा हमारी माँ है, माँ हमेशा कल्याणकारी होती है। तो बिंदी लगाना सीखे, ज्यादा व्यर्थ संकल्प चला करके इसके बिना बिंदी लगा करके रखे। अगर बिंदी लगा ले है तो फिर मैं हर एक के लिए शुभ भावना रख सकती हूँ, न सिर्फ अपने परिवार और अपने मित्र संबंधियों के लिए, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं के लिए। इसके आधार से ही विश्व परिवर्तन होगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। जब हम सीखे कि हमारे अंदर शुभ भावना, शुभकामना के सिवाय और कुछ भी नहीं है, तब फिर ड्रामा पलटेगा और हम देखेंगे कि नई सत्युग की दुनिया आरंभ हो रही है। ये आज की मुरली का, कल की मुरली का थोड़ा कुछ रिफ्लेक्शंस था। और अरुणा बेन ने मुझे पूछा था कि कॉप में क्या हुआ था, उसका भी थोड़ा कुछ सुनाऊं। तो पहले तो उसका हिस्ट्री का बताती हूँ। कॉप जब ब्रह्मा कुमारी है उसको यूनाइटेड नेशंस का वो जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला था, हजारों ऐसे एनजीओस थे जिन्होंने एप्लीकेशन डाला था। तो हजारों में से सैकड़ों गिना चुना था। तो उसमें से हमको हाईएस्ट लेवल का जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला था कि ब्रह्मा कुमारी इसके पास ऐसी एक्सपर्टीज, योग्यता है जिसको यूएन वाले कोई भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जो बाबा हमें सिखाते हैं उसमें बच्चों की एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हर बात में मदद करते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमको ये टाइटल दिया था, गवर्नमेंट्स ने मिलकर के हमको ये टाइटल दिया था।
do for a better world is Baba's task, but it's also coinciding with the UN's task. थोड़ा सा हिस्ट्री बताया था, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कोस्टारिका गवर्नमेंट सेड यस, उन्होंने हाँ कहा, जर्मनी ने भी उस समय हाँ कहा कि ब्रह्मा कुमारी को हम इसमें शामिल करें, तो इसलिए India said yes when it came up for approval. A short history was mentioned, and then इसलिए उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस वालों ने कहा, Costa Rica said yes, America said yes. I think Germany was also on the panel at हमें the तो time. They said yes. 90s के अंत में हमको वो लेवल स्टेटस मिला था। उस समय तो हम पहली संस्था थी और एक ही संस्था थी जो भारत की तरफ से आती हैं। Because I could be wrong, because it was a long time ago that we were given that status at the end of the 90s. ये हमने इसलिए बताया क्योंकि हमको ये स्टेटस मिलने के कारण हम ऑब्जर्वर्स बन करके उनका जो भी प्रोग्राम्स होता था उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो फिर जब क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम शुरू हुआ तब हमारा इस बारी तो ईस्ट से तो हम एक ही संस्था थे, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस अब बहुत ही थे, इस साल की बात कर रहे हैं। एक ही आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट की तरफ से हमारी एक ही संस्था थी, तो उससे आप समझ सकते हो कि बाबा का कार्य कितना अलग है सारे विश्व में जो हो रहे हैं उनसे। जो संस्थाएं मेडिटेशन सिखाती हैं और भी बातें सिखाती हैं, उन सब से हम कितने अलग हैं। तो 2009 से हम ये बात बता रहे हैं कैसे कॉन्शियसनेस, हमारी स्मृति और क्लाइमेट प्रकृति, कैसे दोनों का संबंध है। हमारे पास एक स्टॉल था जिसमें ये सब चित्र हमने रखे थे। वो कहते थे आप ये दोनों को कैसे मिला सकते हो। सृष्टि, स्मृति, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति और लास्ट में हमारा सृष्टि। तो हम कहते हैं कि जब मैं परिवर्तन हूं तो विश्व का परिवर्तन होगा, तो ये आधार से हम ऐसे कह सकते हैं। जब मेरी स्मृति आध्यात्मिक है तो मैं किसी भी चीज को दुख नहीं देती हूँ, मैं किसी का एडवांटेज नहीं लेती हूँ, मैं कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती हूँ, कोई भी पशु पंछी हो किसी का भी दुख नहीं किसी को भी दुख नहीं देती हूँ। और जब हमारी स्मृति इतनी ऊंची है तो हमें अंदर से खुशी होती है। तो इसके आधार से हम चीजें इकट्ठी नहीं करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में सब इकट्ठा करते हैं, कितनी सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, तो हमको तो इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारी जो चाहना ये है बहुत कम है। तो इसलिए जो कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं कि किस चीज से दुनिया में वो पोल्यूशन होता है, वो हमारा बहुत कम होता है। हमारी अंदर में जो संतुष्टता है, खुशी है, उसके आधार से बाहर की दुनिया का इतना असर नहीं होता है। और हमने हमेशा ब्रह्मा कुमारी सी एक ही संस्था है जो सबसे ज्यादा ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका वो यूज करती हैं। अभी हम जो करना चाहते हैं वो
और भी रिट्रीट सेंटर्स है जो ऐसी एनर्जीज को यूज करके अपना रिट्रीट सेंटर चलाते हैं। कई सालों से हम इसका जैसे नगाड़ा बजा रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम अच्छा है, सोलर सिस्टम अच्छा है, लेकिन कई बारी वो कहते थे आप तो 2012 में जो रियो +20 समिट हुई थी 2012, 20 साल के बाद वो लोग कहने लगे अगर हमें सारी आम जनता को पहुंचना है तो वो कहते हैं कि हमें जो इंटरफेथ वाली संस्थाएं हैं उन्हों के द्वारा वहां पहुंचना पड़ेगा। वो रिलीजन की बात कम करते हैं। 80% आत्माएं कोई ना कोई धर्म में मानने वाली हैं। 20% है जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, कोई भी धर्म में नहीं मानते हैं। लेकिन 80% की विश्व का पॉपुलेशन को पहुंचने के लिए हमें फेथ के द्वारा, इंटरफेथ के द्वारा उन्हों को पहुंचना है। तो ये फिर 2014-2015 में वो लोग फिर ऐसी संस्थाओं को इनविटेशन देने लगे। इंटरफेथ भी बहुत ही आगे बढ़ने लगा। क्रिश्चियंस भी बहुत हमको मिलते रहे थे। एक माता थी, इसने एक जो बड़ा व्यक्ति था क्रिश्चियनिटी वाला, उसने हमको मीटिंग के बाद हमारे से एक अलग मीटिंग की और ये सब समझने के लिए कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वो बहुत फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ा रही थी। वैलेरियन जो स्विट्जरलैंड में है वो, और एक भाई जो बहुत बड़ा वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का है, वो दोनों ये इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस का सारा कारोबार चलाते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए थे इंटरफेथ का। इस साल वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जो है उनकी कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत विश्व भर में कॉन्टेक्ट्स हैं। इस साल पहली बारी उन्होंने कोई हिंदू व्यक्ति था जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी के साथ बहुत सालों से काम किया है, मधुबन भी आए हुए हैं, तो उनको बिलीफ्स एंड एथिक्स एंड वैल्यूज इनके बारे में उसको निमित्त बनाया था। तो उसने ब्रह्मा कुमारी को निमंत्रण दिया था। कोई भी फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की जब मीटिंग होती थी तो वो हमको निमंत्रण देकर के बुलाते थे। अल गोर की बेटी, उसने ये एक संस्था शुरू की थी।
उसने जो फिल्म बनाई थी द इनकन्वीनियंट ट्रूथ, दो फिल्में बनाई उसने। तो वो अपनी बेटी को सुनने के लिए आए थे, लेकिन हमारा भी वो सुन रहे थे उसी समय। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादगी वाली, बहुत ही नम्रचित, लेकिन उसने जो इनपुट दिया, जो वार्तालाप की, बहुत ही अच्छी तरह से की थी। और उसके नाम के कारण बहुत लोग आए थे वहां पर, और वो सारा ब्रॉडकास्ट हो रहा था। हम जो भी ब्राह्मण परिवार वाले गए, बीकेस गए थे, वो भी देख रहे थे, लाइव वेबकास्ट हो रहा था। फिर बीबीसी वाला एक व्यक्ति था, वो गिने चुने लोगों को, 3 जने को इंटरव्यू किया था, और वो सारे विश्व मीडिया चैनल्स में उन्होंने फिर ब्रॉडकास्ट किया था। यूके का चीफ रैबाई, उसने अपने एक पैनल में बताया था कि गवर्नमेंट वाले फेथ बेस्ड लीडर्स को हमेशा इग्नोर करते हैं, उनका सुनते नहीं हैं। वो हमेशा ऐसे कोई प्लेटफॉर्म ढूंढते थे। तो एक बीबीसी रिसर्चर, एक माता थी, वो उसने हमको ढूंढा और इसने कहा हमने जितने पैनल्स में अपना हिस्सा लिया था, 30 से ज्यादा, 2 हफ्ते में, इंटरफेथ के बारे में था, रिन्यूएबल एनर्जी, यूथ के बारे में, लीडरशिप के बारे में, बहुत सारी ऐसी बातों में हमने बहुत सारी चीजें कवर की थी, जिसमें हमको मतलब मौका मिला था कुछ न कुछ बोलने का, सुनाने का। तो मैंने उसको कहा कि हमें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो उसने कहा कि आप एक इंटरव्यू करना चाहेंगे एक और व्यक्ति के साथ संडे प्रोग्राम में। रिलीजियस न्यूज का प्रोग्राम संडे मॉर्निंग में होता है, संडे सुबह को होता है। ज्यादा करके जो धर्म में मानने वाले हैं, शायद वो लोग ये सुनते होंगे। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा था। 15 मिनट हमको रिकॉर्ड किया। बहुत ही बारिश अच्छी नहीं थी उस दिन, ये हुआ था जब बारिश भी थी, बहुत ही तूफान था। जैसे हम चल रहे थे तो हमारे सामने से बहुत हवा चल रही थी, लेकिन ऐसे दिन पर वहां पहुंचना ये थोड़ा मुश्किल था। बहुत बड़ा बिल्डिंग था, लेकिन सारा बिल्डिंग खाली था। इतना सारा वहां पर इक्विपमेंट था, मशीनरी थी, लेकिन बहुत थोड़े लोग वहां पर काम करने वाले। उन्होंने अपना कारोबार शुरू नहीं किया है कोविड के कारण। एक स्टूडियो में मैं थी, दूसरे स्टूडियो में और इंटरव्यू हो जाती, वो मैनचेस्टर में थी। तो पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसे लगता था जैसे हम ऐसे वो स्पेसशिप में बैठे हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी आगे भी ऐसे ही बातें होंगी। गोलोक भाई का भी इंटरव्यू रहा था, कोई मीडिया बेल्जियम से। उनको पूछा था आप कप में क्या कर रहे हो। कैरोलिन जर्मनी से, बर्लिन से आई थी। पिछले
4 साल से एक संस्था के साथ काम कर रही है। ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो मानते हैं कि कोई भी प्रकार का ज्ञान धारण करने के लिए अलग अलग तरह के हैं, जैसे a scientific organization set up 11 years ago where they believe उनका जो डायरेक्टर है वो बहुत बारी हमें मिले हैं और वो खुद हमारे डिस्कशन ग्रुप्स पर आते थे और बीकेएस को भी बुलाते थे उनके स्टैंड पर। meditation and the director of the scientific director of the whole thing he's met us many times एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो पैनल था, discussion groups on वो लोग जानना चाहते थे कि and so we had lots of discussion groups on their stand I think about 2 प्रकार के लीडरशिप, again another very interesting लेकिन ये दोनों तरह का लीडरशिप बहुत ही अलाइंड है, मतलब समान रीति से काम करते हैं। goals and they were looking at gender equality दादी प्रकाश मणि जिस तरह से काम करती हमने देखा, feminine बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद leadership and the two सभी दादियों को मिला करके उसने की ऐसी टीम बनाई, फिर टीचर्स की टीम बनाई, मतलब अकेले अपने आप कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे सब मिला करके ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दादियों का दे सकी थी। she didn't do it alone of course she had Baba but she also brought 2 रिसेप्शंस हमने किए थे। she created a team in Mother वहां पर एक चर्च था created teams कुछ मिनट दूरी पर, lots and lots of जहां पर गवर्नमेंट्स मिलते थे, उससे थोड़े मिनट दूर एक जगह पर हमने रिसेप्शन दिया था। so very good session the two most successful things that we organized were 2 receptions in a Unitarian church just a few minutes walk away from the main area where the governments were meeting, the blue zone. The green zone was another area which was the UK. ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से ओपनिंग स्लॉट में संदेश देने का मौका मिला था, तो Video, welcome video. यूथ वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत इंटरफेथ पैनल्स में भी बहुत अच्छा रहा था, स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी भी बहुत अच्छी तरह से शामिल हुआ था। वैलेरियन made that happen. It couldn't have happened otherwise. I haven't told you about how good the youth were. They did brilliant. बहुत ही अमेजिंग थिंग्स हो रही थी। Participation in other interfaith panels. The spirit of humanity was well represented. They were being ये एक Valerian interfaith things. ये ग्लोब तो ऊपर से लटक रहा था, लेकिन हमारा हाथ ऐसे रखने के लिए बोला ताकि ऐसे लगे जैसे मेरे हाथ में ग्लोब है। तो ये डेप्यूटी डायरेक्टर यूएन का वो नहीं आ सके थे, इसलिए जूम द्वारा उसको बुलाया था, और ये सारा इंटरफेथ वाले, ये कुछ लोग जो यहाँ से गए हुए थे। गोलो भाई का इंटरव्यू हो रहा था। ये हमारे रिसेप्शन का था। यूके बीके इंटरनेशनल ग्रुप, फिलिपा खास आई थी 1-2 दिन के लिए। राजेश भाई भी बहुत अच्छा रहा था कैमरा लेकर के। एक अच्छी बात जो होती है, हम सब मिल करके कैसे साथ में रह करके इतना समय एक दो के साथ बिताते हैं। ये यहाँ मोहम्मद बट, one of the joys of COP is the time that we spend together in this way. Here you're not seeing Karina, but she's there on the other side. So
ब्रेंट वालों ने एक एग्जीबिशन किया था, उसमें हमारा फोटो भी लिया था, हमको बोला ऐसे बैठो ऐसे। And the photographer was asking me to pose. Turn your chin here, turn your face here, just sit like this. पिंक He had in mind पिंक कार्डिगन पहने हुए एक came out. लीडर है यूथ वालों के लिए। An exhibition that Brent Civic Center, which is a beautiful, very elegant place, had. And the और जो बीच में माइक लिए बैठी है वो है प्रोफेसर with the pink ईस्ट एंग्लियन यूनिवर्सिटी वाली। a youth leader from India, from Orissa. So quite an incredible person. And the one sitting on the other side is Azza, आवाज हो रहा था जो हम सुन नहीं सकते थे, इसलिए and one हर एक के पास माइक्रो हेडफोन्स था। East Anglia University, and Maureen and Carolyn 2014 से एक माता हमको मिलती आई है, उस समय वो पीएचडी स्टूडेंट थी, अभी वो क्वालिफाइड है, WWF के साथ काम करती है। and so everybody had headphones, even people हर साल बाबा का संदेश बहुत ही वो लोग स्वीकार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और एक लास्ट बात कॉप की she was at that time a PhD student and now of course एक्टिविस्ट जो she's working with चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो, लेकिन सुबह शाम it was दोपहर को here Baba's message is more and more appreciated at the COPs because they want spirituality. लेकिन हर एक And the last stop, पुलिस हमेशा मुस्कुराते चेहरे से उन लोग की जैसे सेवा करते थे, तो वातावरण बहुत ही अच्छा रहा। cold, एक मार्च था जिसमें 3 पीके ने भाग लिया था। there with their message of हमें तो स्टेशन पर जाना था ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन एक कार्निवल जैसे झांकी जैसा वहां पर चल रहा था। and all of us also. So बहुत सी बातें वो लोग कर रहे थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। 3 BKs participated in, and I just happened to see it. तो विश्व के हिसाब से कॉप 26 है, ज्यादा कुछ वो नई सफलता हुई है, लेकिन जब गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार हो तो विश्व तो जैसे नीचे जा रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे ऊपर जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब वो लोग स्वीकार करने लगे हैं, मानने लगे हैं। Pardon me if I say that. It sounds significant, but when will governments listen? So चिंती बहन को बहुत बहुत बधाई है। तो चिंती बहन कह रहे नहीं हो तो बाबा ऊपर बैठे बटन दबा रहे हैं। and so spirituality आपने भी तो बहुत सारे कनेक्शंस किए हैं। acknowledged and recognized. तो अभी कब के ग्लैमर से हम अपनी स्पिरिचुअल स्टडी के ऊपर Baba pushing buttons to make it all happen, really. Amazing at these places. एकांत माना एक के अंत में जाना। Connections, dynamic. Yeah. So we move now from the glamour of COP back to our spiritual studies. And so one of the questions I had, Sister Jayanti, was if we go back एक to के साथ Ekant, कनेक्ट करके it उनको means इस तरह से Ekant. जाने, So we were जैसे discussing साकार बाबा हमेशा कहते what does it mean to go to the end. फोटो में कोई ही मुझे जो हूँ जैसा हूँ जानते हैं। So please explain. Yeah. मेरा भगवान के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है। मैं क्या महसूस करती हूँ, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे लिए हाजिर है। Know me as I truly am. So, question, what are my expectations of God? And do I realize that Baba has given me everything? I don't need to ask him for anything. Everything is available for me. And so our unrealistic or our bhakti expectations of God, क्या मैं भगवान के अंत में जा सककर भगवान को अपना बना सकूं, really, इसमें कोई भी and when I'm looking हिचक at it, नहीं, कोई भी खिंचाता नहीं, लेकिन कोई भी I know God, आकर्षण भी नहीं, लेकिन भगवान कौन है depths of God, और उनके नजदीक आना, God belong to ताकि मैं भी बाप समान बन सकूं। totally surrender to God also.
माफ करने में एक कारण हम जो किसी को माफ नहीं कर सकते इसलिए कि हमने दुख उठाया है और इतना गहरा दुख है जो हम किसी को माफ नहीं कर सकते हैं। And then, तो Sister पहली Jen, बात तो यह है कि हम किसी भी बात में दुख न उठाए। as you also ये कहने में तो सहज है mentioned, लेकिन so, करना um, युक्ति क्या है कि the हम reason कोई why दुख we न don't उठाए। forgive is because we've taken sorrow. It's like the sorrow has gone so deep in the soul. So I would think the first premise is to not take the sorrow. एक तो अपने अंदर बचपन से ही बहुत दुख पड़ा हुआ है जो मैं उठाकर चल रही हूँ। आप लोगों को दिल खोलेंगे, आप खोलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि बचपन में उन्होंने कितने कितने दुर्घटनाओं का सामना किया है और उसका दुख वो लोग अभी तक भी वो सॉल्व नहीं कर सके हैं। तो बाबा से इतना लिया है, इतनी शक्ति ली है, प्यार लिया है, जो वो दुख तो हमने खत्म कर दिया है। ड्रामा कर्म जो भी हो यह अभी खत्म हो गया। अभी मैं उस पर अपना विचार नहीं चलाएंगे। अपने अंदर दुख है अभी भी, भगवान का प्यार लेकर के वो दुख को मिटाना, उसको खत्म कर देना। अगर मैं आज आपके सामने रूड होती हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो दुख है। ये दुख की बात तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। कितनी बार हम देखते हैं हमारा जो इंटरेक्शन है, व्यवहार है, उसमें दिखाई पड़ता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि हमने दुख उठाया है। और दूसरा है दुख हमने जो उठाया है बाबा के पास आने से, और उसमें छोटी छोटी बातें होती है। जो बचपन का दुख है उन जितना इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ छोटी छोटी बातों में हम इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसलिए मैं ये ऐसे करती हूँ, तो ये सब इकट्ठा हो करते, इसलिए मैं नाराज रहती हूँ। तो ज्ञान की शक्ति से मैं ये जानूं कि मेरे अंदर ऐसी कुछ बात है जिसके वो सेम व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं है। मैं क्यों दुख उठाती हूँ उस व्यक्ति के व्यवहार से? तो जरूर कुछ हिसाब किताब है। तो मैं भगवान से शक्ति लूं, सहन शक्ति लूं, सब समा करके आगे बढ़ूं, अपने अंदर वो इकट्ठा करके नहीं, लेकिन उसको खत्म करके आगे बढ़ूं, सहन शक्ति से उसको खत्म करते हुए। तो उसके लिए मुझे अंदर से इतनी ऊंची खुशी की स्थिति हो, तो कोई भी बात होती है तो मैं उसमें हंसकर उसको खत्म कर सकती हूँ। जब अंदर से हमारी स्थिति ठीक है तो कुछ भी बात होती है तो हम कहते हैं कि कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जब हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, हमारे अंदर वो अंदर आंतरिक खुशी नहीं है, तो थोड़ा भी कुछ बाहर से कुछ गलत होता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो बहुत दुख होता है। तो उसमें कैसे हर बात में थोड़ी थोड़ी बातों में दुख उठा लेते हैं। अपने अंदर जो इतना इकट्ठा किया हुआ है दुख है, इतना ऊंचा रहे, इतना खुशी में रहे, जो छोटी छोटी बातों का हमारे ऊपर कोई असर न पड़े। इसमें क्या पिछले जन्मों का जो दुख होता है वो भी ज्ञान से पहले का, न सिर्फ इस जन्म का लेकिन आगे जन्म का भी।
ये जैसे Does that आदत पड़ also गई है mean, दुखी रहने की। the trauma from past lives? Are you saying before Gyan is not एक the जन्म का just ट्रॉमा दूसरे past जन्म lives? तक नहीं आता है, लेकिन जैसे आदत पड़ जाती है। That I would say is हमारे more पास ये इतना रिसर्च the किया हुआ habit नहीं है, लेकिन of being sad or habit of being unhappy. Because जैसे I एक think I could be wrong, but I don't think एक आत्मा all जिस शरीर में भी है, कितने साल कितने भी साल रही हो, लेकिन ये शरीर छोड़ते समय इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जो I think probably बाकी का सारा है वो सब जैसे मिटा देता है। soul leaves its home that it's had for 80 years, 30 years, 40 years, however long. When a soul leaves that home, that in itself is such a traumatic experience that it घर हम जब बदल करते हैं तो कितना टाइम लगता है हमें नए घर में सेटल करने में। now it's in a new तो home, a new baby, a little ये तो हम house, उसी शरीर में है, लेकिन यहाँ जब डेथ मौत ऐसे अचानक कोई भी होता है तो उसमें सब कुछ बदल जाता है। हमारा व्यवहार जिनके साथ है, संबंध जिनके साथ है, हमारा घर, हमारा देश, सब कुछ बदल जाता है। at least you're still yourself. तो ये भी बहुत, अब इस ट्रॉमा में बाकी सब ट्रॉमा खत्म हो जाता है, Traumatic experience that everything you knew is लेकिन now उसमें जो दुख उठाने की आदत पड़ जाती है, संस्कार बन जाता है। everything has been left. इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी उस आत्मा को जैसे आदत पड़ी हुई है, And so in the next birth, though, what does तो वो happen संस्कार is से that हटने के लिए ज्ञान की जरूरत, ज्ञान की शक्ति की चाहिए। the sanskar of keeping sorrow. So you've seen it happen today in this birth. There's nothing that's specifically wrong, but the person still isn't actually able to be happy, and so they need gyan to be able to come out. ऐसे नहीं है कि वो ट्रॉमा, Maybe I know it's late to start this discussion, but gentlemen, going by what you're ट्रॉमा saying, आगे नहीं you're बढ़ता है, saying लेकिन that ट्रॉमा से जो the संस्कार बना है वो दूसरे जन्म में आगे बढ़ता है। where's the role of sanskars then? The sanskar that I'm carrying is that of sorrow, and we were talking about trauma, and so where the soul has been traumatized, that certainly stays until you deal मेरे with पास this इतना birth with Baba's love. बाहर के रीति से इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं बता सकूं कि ट्रॉमा भी आगे दूसरे जन्म में ट्रांसफर होता है। But I do know that the sorrow that has come from the trauma, that sorrow is a sanskar that is carried. Okay, that makes sense. बाबा कहते हैं आपका मन पावरफुल होना चाहिए, On the external level too. तो वो कैसा मन हो, Is also जो मन साफ है, श्रेष्ठ है, Yeah, but that's palatable. जिसमें हर बात में वो आध्यात्मिक रीति से सब कुछ दे सके है। Maybe a nice question to end with. Powerful तो मैं mind, Baba tells us, देहिक दृष्टि से सब कुछ नहीं देखती हूँ, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सब कुछ देखती हूँ। इसको हम कहेंगे कि ये पाव, ये तीसरे नेत्र से देखना, ये भी एक पावर होता है। तो चंची बहन, आपको बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम यहाँ खत्म करेंगे। आपका दोपहर का बीच का समय है। अभी आगे बढ़ते भी 3:30 बजे ही टाइम रहेगा। देखते हैं जिंती बहन कभी बदलेंगे तो फिर, नहीं तो 3:30 बजे ही रहेगा। आप सबको मिलना कभी बहुत खुशी हुई। सब खुश रहना, अच्छा रहना, उठते रहना। ओम शांति। So this will be the timing now going forward for the next few weeks until there is change in Sister Jayanti's timetable. Okay, lovely to meet you all again, and stay well and keep flying. Follow me.
Om Shanti.